میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. مجھے کسی وقت میں بہت شوق تھا میں بڑے بڑے لوگوں کو ملوں، یہاں تک کہ وزیر اعظم، وزیر اعظم، گورنر تک میں نے رسائی کی اور بڑے بڑے خدام سے، پادریوں سے میں ملا. میں نے ایک چیز جو بڑی نوٹ کی اور میں نے اس چیز کو دیکھا، ریلائز کیا اپنی نجات کے بعد. میں نے یہ ریلائز کیا کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کی زندگی پاک ہے، جس کی زندگی پاک ہے. وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا جس کی زندگی ناپاک ہے. آمین. تو زوردار تالیاں بجائیے اس پاکی کے لیے. تو آج جو ٹاپک مجھے ملا وہ پاکیزگی کے تعلق سے. بڑا آدمی وہ ہے جو پاک ہے، کیونکہ پاک شخص سچا ہے، پاک شخص سرفراز ہے، پاک شخص میں زندگی کی بھرپوری ہے اور وہ شادمان رہتا ہے. ہولینس. ہم اپنی زندگی میں جو چاہیں سو کر لیں، ہر قسم کے گول کو اچیو کر لیں، پوری دنیا کا سفر کر لیں، روپے پیسہ اکٹھا کر لیں، گاڑیاں حاصل کر لیں، مگر اصل چیز جو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ خداوند کی پاکیزگی. آئیے ہم دیکھتے ہیں پطرس رسول کا خط، پہلا خط اور اس کا پہلا باب اس کی 14 سے 16 آیت. کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو. یعنی جب تم نے توبہ نہیں کی تھی اس وقت جو خواہشات تھی اب ان کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں، اس لیے کہ میں پاک ہوں. یعنی جب ہم زمانہ جاہلیت کے اندر تھے، جب میں نے مسیح کو قبول نہیں کیا تھا تو وہ زمانہ میرے لیے زمانہ جاہلیت تھا. اب مسیح آ گیا تو یہ نور کا زمانہ آ گیا. تو پھر اس لیے پتہ چلتا ہے اس زمانے کے جتنی خواہشیں تھیں ان کے تابع نہیں ہونا. آمین. ایک اور ہم حوالہ دیکھیں گے، مقدس پالوس رسول کا خط عبرانی کی کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت. لکھا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب ہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. اس پاکیزگی کے طالب ہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر ناپاک ہو جائے. کون سی جڑ؟ کڑوی جڑ. کون سی جڑ کی؟ کڑوی جڑ. کڑوی جڑ ناپاک اسی چیز سے ہو جائیں گے آپ، کڑوی جڑ سے. جڑ نظر نہیں آتی، درخت نظر آتا ہے. جڑ نظر نہیں آتی، درخت نظر آتا ہے. وہ جڑ اندر ہوتی ہے، یعنی کڑواہٹ اندر، کڑواہٹ اندر، کڑواہٹ ہے اندر، کڑواہٹ، بٹرنس، کڑواہٹ اندر، یعنی اندر دکھ.
कड़वी जड़ बिटरनेस अंदर ये दुख भी देती है और नापाक भी करती है। ये कड़वी जड़ दुख भी देती है और नापाक भी करती है। हमारे ज़हन के अंदर, हमारी अक्ल शऊर के अंदर जो पाकीज़गी के ताल्लुक से अहकाम है शरीयत के, वो कुछ चंद है। मोटी मोटी बातें, ज़िना ना करना भी, हराम कारी ना करना भी, और उसके बाद हमारी लिस्ट खत्म होना शुरू हो जाती है। हमारी लिस्ट खत्म होना शुरू हो जाती है। जड़ सारे दरख्त को नूरश करती है, जड़ सारे दरख्त को नूरश करती है, यानी उसे पानी, उसे मट्टी की ताकत, कुव्वत पहुंचाती है। अगर तुम्हारे अंदर वो कड़वी जड़ है जो तुम्हारी अकल को फीड करती है, तो तुम्हारी सारी जिंदगी को ये कड़वाहट, ये रिसेंटमेंट दुख देगी, ये तुम्हें नापाक कर देगी। और आगे हम देखते हैं कि ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इवज अपने पेलोटे होने का हक बेच डाला। ये भी कड़वाहट है। बहुत सारे लोग उस इज्जत को इज्जत नहीं समझते जो खुदा उन्हें देता है, जो खुदा उन्हें देता है, और वो उससे बरगश्ता हो जाते हैं। यही तो कड़वी जड़ है जो इंसान के अंदर फीड करती है, फूट निकलती है। ये नापाकी है, खुदा से दूर होना, खुदा की उस इलाही मोहब्बत को ना पहचाना। उसने असहू को पेलोटा होने का हक दिया, उसने उसकी कदर ना की, बल्कि एक वक्त के खाने के इवज उसने अपने पेलोटे होने का हक बेच दिया। और आगे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद उसने बरकत का वारिस होना चाहा। उसने रियलाइज किया वो मुझसे क्या हो गया, वो मैंने क्या, मैं तो कर बैठा हूं। उसने बरकत का वारिस होना चाहा, तो फिर मंजूर ना हो, फिर मंजूर ना हो। चुनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। उसने आंसू बहा कर इसकी तलाश की। असल में पाकीज़गी का ताल्लुक हमारी नियत के साथ है। पाकीज़गी का ताल्लुक किसके साथ है जी? हमारी नियत के साथ है। जैसे फकीर फरीसी अजीब किस्म के इल्जाम, कलाम कुछ और कहते हैं, सोच कुछ और है। यीशु मसीह पहाड़ से दुआ करके आ रहे, साथ शागिर्द भी फकीर फरीसी देख रहे। हमें एक बात बताओ, तेरे शागिर्द हाथ धोकर रोटी नहीं खाते और वो नापाक है, नापाकी के अंदर रोटी खाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो चीज तेरे अंदर जाती है वो तुझे नापाक, यानी खाना पीना, वो तुझे नापाक नहीं करता है, बल्कि जो चीज बाहर आती है। गलतियों के खत में जिस्म के काम लिखे, हराम कर, नापाकी, हसद, गुस्सा, तफरके, बिदते, जुदाइयां, नाचना, नक्शाबाजी, बुतप्रस्त, ये तुझे नापाक करती है। और इस तरह बहुत सारी बिदअत ये तुझे नापाक करती है। मेरे बेटे को हल्का सा बुखार हो गया, अभी एक माँ जी आई, क्या लगे नजर लग गई, 7 बारी पानी मार के ना उठा करके गले में छोड़ दे पानी, ये होने लग जाएगा बाहर। ये बिदअत, ऐसी चीजें हमें नापाक करती, खुदा से दूर करती। और फिर जब आप आंसू बहा कर पाकीज़गी की तलाश करते तो ईसाऊ की तरफ वो मिलती नहीं, ईसाऊ की तरफ वो मिलती नहीं। ज़बूर खान में लिखा है, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और ये भी कि चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मालिक है मुझे पाक दिल है,
मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे, वो खुदा को। कोई पाकीज़गी के बगैर ये नहीं कह सकता कि मैंने खुदा को देखा, बल्कि हम 1000 बार दुआ करते हैं, इब्लीस को देख लेते हैं, लेकिन इब्लीस भी नूरानी फरिश्ता होकर शक्ल बदलकर हमारे सामने आ जाता है, नूरानी फरिश्ता बनकर शक्ल बदलकर हमारे सामने। मैंने खुदा की सुन को क्या मैं तेरी सुन रही, मैं तेरी, और अंदर कड़वी चाल, अंदर पलीदी, अंदर पाकीज़गी नहीं है, है जी, बातन में गुनाह है, बातन में जो है वो फाड़ने वाला है ना, तो खुदा कैसे हो? पाक मस्ता, पाक दिल, पाक हाथ, हालेलुया। खुदा छूने से ब्लेस करता है, बरकत देता है। जब तक आपके अंदर पाकी है, जब तक आपके अंदर पाकीज़गी है, तो ऐसा मुमकिन है कोई कड़वी जड़ आपके अंदर फूट निकले। एक दिल में एक शख्स जो है वो कयाम कर सकता है, एक दिल में एक ही जो है वो सूरत बच सकती है, या मसीह की या इब्लीस, या मसीह की या इब्लीस की। मजीद मसीह ने गीत लिखा, शिफाएं तो और भी देंगे पर वो गम को खरीदेंगे, अपनी शिफा ना देगा कोई, अपनी शिफा के लिए यीशु चाहिए। तो यीशु को पाना चाहते हैं, यीशु को हासिल करना चाहते हैं, तो जरूर है ये कि आपका दिल पाक, आपकी सोचें पाक हो। अभी मैं दुआ कर रही थी कि खुदावन तेरी बादशाही यहाँ पर, तेरी बादशाही के वारिस, तेरी बादशाही को ढूंढते। हम बहुत से दुआएं करनी भी चाहिए, हमें ये दुआ करनी चाहिए तेरी बादशाही आए। जब खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों ने उससे ये बात कही, क्या मैं दुआ करना सीखा। यीशु की जिंदगी मौजज़ात से भरी हुई थी, यीशु की जिंदगी मौजज़ात से भरी हुई थी। उसके शागिर्दों ने कभी यीशु से ये ना कहा हमें मौजज़ात करने सिखाओ, ना। यीशु करिश्मात करता था, हमें करिश्मे करने सिखाओ। तू किस तरह से आंधियों तूफानों को रोकता है, हमें ये भी सिखा। तू किस तरह मुर्दे को जिंदा कर देता है, हमें ये सिखा। बल्कि उसने बारहा उसके शागिर्दों ने कहा, उस्ताद हमें दुआ करना सिखाओ, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाई। यीशु मसीह ने कहा पाक बनो, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। तो यीशु ने उनको दुआ सिखाई। कौन सी दुआ? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। तो कहां पर बादशाही आई? जहां पर उसके नाम को पाक माना गया, जहां पर उसके नाम की तहारत की गई, जहां पर उसके नाम को सजदा किया गया। क्योंकि लिखा आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, फक्त एक ही नाम बख्शा गया है जिसके वसीले से हम नजात पा सके, और वो नाम यीशु नाम है। ताकि कुछ ना उसके नाम क्या कह चुके, वो आसमानियों का हो, वो जमीनियों का, वो उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे यीशु अल मसीह खुदा है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। बादशाही वहां पर आएगी जहां पर उसके नाम को पाक माना जाए। वो बुलंद है, वो नूरों का बाप, वो नूर की पोशाक पहनता, बाल दुबराता, क्या अख्तियार है। मैं तुझसे कहता हूँ हालेलुया, हालेलुया, मैं तुझसे कहता हूँ यीशु मसीह की बादशाही कब आएगी आपकी जिंदगी के अंदर, तब आप उसकी बादशाही का हिस्सा बन जाएंगे। जब आपका दिल पाक है, आपकी सोचें पाक हैं, आप खुदा यीशु मसीह के पाक बुलावे पे बुलाएंगे। क्रिश्चियन लोग उनका बुलावा पाक है, उनका मसीह पाक है, उनकी बाइबल पाक है। जो ला तब्दील ला खता कलाम जो बदल देता है जिंदगियों को, सोचों को, ख्यालों को, हवाओं को, फिजाओं को। रात सोने से पहले दुआ, कोई ख्वाब ना आए, ऐ खुदा कोई गंदी तासीर मेरे ख्वाब में ना आए। मेरी रूह खुदा तुझ में, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में तेरे सुपुर्द करता हूँ। कोई गंदी ख्वाब मेरी रूह मुतज़लज़ल ना हो, मुझे डर और खौफ की स्पिरिट से महफूज अपने आप को खुदा को देना, अपने आप को खुदा को सौंपना। कड़वी जड़, कोई कड़वी जड़ ना फूट निकले, इसके लिए महफूज करना अपने आप, ये बहुत जरूरी है। अगर आप
अगर पाकीज़गी नहीं है, बहुत सारी नेमतें छीन जाएंगी, बहुत सारी नेमतें छीन जाएंगी आपसे। बाप दादा ने बड़ी मेहनत करके आपके लिए बहुत सारी नेमतें इकट्ठी की, आपसे वो नेमतें छीने क्योंकि पाकीज़गी नहीं, क्योंकि पाकीज़गी नहीं है, क्योंकि पाकीज़गी पाकीज़गी नहीं। देखिए तीमुथियुस के नाम खत, तीमुथियुस के नाम खत उसका दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत। देखिए बड़े घरों में ना सिर्फ सोने चांदी के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। पाक शख्स इज्जत का बर्तन है। पाक शख्स कौन है जी? पाक शख्स इज्जत का बर्तन है। पर जो भी उनसे लागू अगर अपने तई पाक करे, पाक करे, वो इज्जत का बर्तन और वो मुकद्दस होगा और मालिक के काम के लायक और हर नए काम के लिए तैयार होगा। आप देखते हैं अशायर वाली के लिए जो बर्तन रखे जाते हैं, ये नहायत पाक, ये पाक बर्तन है, ये खुदा के बर्तन हैं। और जिस तरह जो हैकल थी उसके पाक बर्तन में जिस बादशाह हैकल पर हमला हुआ, वो खुदा के पाक बर्तन ले गया अपने मुल्क में। वो वहां पर जाकर उसने उन बर्तनों में शराब नोशी की, खुदा ने आसमान से उस पर लानत भेजी और वो तमाम उसकी ब्लेसिंग्स छीन गई उससे। बर्तनों की बेहुरमती, खुदा के कलाम की, उसके मज़बा की बेहुरमती। क्यों? कड़वी जड़ जो है वो आपके अंदर फूट निकली। अपने आप को पाक कीजिए, अपने आप को पाक कीजिए खुदा के लिए। जवानी की ख्वाहिशों से पाक, जो पाक दिल के साथ खुदा से दुआ करते हैं, उनके साथ रास्तबाजी, ईमान, मोहब्बत और सुलह का तालिब हो जाए, तुझे आसमान पर बड़ा खजाना मिलने को। हालेलुया। और वाज़ह लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकार न करे, कोई तेरी जवानी की हकार न करे, कोई दिल में सलामती न करने पाए, कोई दिल में सलामती न करे, कोई दिल में जुमली न करे। हालेलुया। ये खुदा कादिर मुतली खुदा मज़बा की पर खड़ा है। देख मैं अपने दिल का दरवाजा खटखटाता हूँ और आखिरी ज़माने में किताब मुक़द्दस में क्या आपने खुद दोस्त के बाद मगरूर बात को ना माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र और नापाक होंगे। लोग नापाक होंगे, नापाक ख्वाहिशों के ताबे होंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने दिल को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपनी फिक्रों को पाक रखो। खुदा हर एक चीज कसरत से उनको देता है जिनके हाथ पाक है, जिनके हाथ खुदा सबको रिज़्क देता है। चरिंद परिंद दरिंद को सबको अता करता है, रुपया पैसा सब कुछ देता है, मगर लेता किसी से है। हर एक का हदिया खुदा कबूल नहीं करता। लोग कहते रहते हैं मैं इस महीने 2000 देना गिनते, वो कई महीने लग जाते। एक हम इबादत पे गए, मैं बड़ी भाई और वसीम भाई, वो बहन कहने लगी 5 साल हो गए मैं खुदा के अपने घर इबादत करानी, मैं हर महीने कहनी अपने घर इबादत करानी। आज मेरी 5 साल की जड़ी गल से कबूल होगी। मैं 5 साल लग गए तानू दुआ करवांदिया किन्नी खुदा तो दूरी, खुदा मौका नहीं देता। इन्नी नापाकी खुदा ने मौका नहीं देता। खुदा तेरे रुपए पैसे को कबूल करना नहीं चाहता। खुदा किसी के रुपए पैसे को कबूल करता है। 1000 रुपये आए, लाखों रुपये आए, बरकत नहीं रही, घर नहीं बनया, निजाम सदा नहीं होया, पैसा आया उड़ गया, खुदा ने 1 रुपया भी तेरे को नहीं मांगा। खुदा के लिए मेरा है ये नापाक राहों से चलता हुआ रुपया तेरे पास है, ये मेरा नहीं। खुदा उसके रुपए पैसे को अपने जो मकबूल ठहराता है। खुदा उसकी जिसकी नीयत पाक है, पाकीज़गी का ताल्लुक नीयत के साथ है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा उसके दयालतियों को, हदियों को कबूल करता है। खुदा ने कायन के हदिये को कबूल इसलिए नहीं किया, इसलिए कि उसकी नीयत नापाक थी, उसकी नीयत में फतूल था। और हाबिल के नजराने को इसलिए खुदा ने कबूल कर लिया कि वो नाज हलीमी, आजी, फरोख्ती के साथ खालिस चीजें खुदा के हजूर में ले आया, क्योंकि उसे खुदा का खालिस प्यार मिला। खुदा का दाना हाथ जो कवि और कादिर था उसके ऊपर बड़ा हुआ था। उसकी जो जितनी भी उसकी वो भेड़ बकरियां थी वो तरक्की कर रही थी, वो बढ़ रही थी और हद से ज्यादा बढ़ रही थी।
मगर उसकी फसल कभी ना बढ़ी, बल्कि वो जल गई सारी की सारी। और वो जली हुई जो गंदम था वो खुदा के लिए लेके आया। खुदा का कायन ले जाए इसे, फिर उसका मुंह बिगड़ गया, सड़ गया सोकन मुंह। इस तरह सोतन जल जाती है, इस तरह वो भी जल गया और मुंह बिगाड़ लिया। खुदा ने उसे आसमान से आवाज दी, कायन तेरा मुंह क्यों बिगड़ा, कायन तेरा मुंह क्यों बिगड़ा, भाई से जल गया। हसद, गुस्सा, तफरके, बित्ते, जुदाइयां, ये सारे जिस्मानी काम नापाकी की वजह से उसके अंदर आ गए, आखिर वो कातिल हो गया। तेरा मुंह क्यों बिगड़ा कायन, अगर तू भला करे तो क्या तेरा भला ना होगा। खुदा उसका भला करता है जो खुदा के साथ वफादार है। खुदा उससे नीयत की तब्दीली का मौका क्यों नहीं ईसाऊ को मिला। हालांकि उसने रो रो कर कहा, खुदा मुझे माफ कर दे, मैंने अपने बड़े होने का हक बेच दिया। यहाँ पर हमारी बहनें जो खिदमत करती हैं, जिस तरह बाजी बल्कि वंडरफुल, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बाजी बल्कि के लिए, बाजी मुस्लिम के लिए तालियां बजाइए। ये बहुत खिदमत करती है, चर्च की बड़ी भाई बहुत खिदमत करते हैं। खुदा पाक ने आसमान के नीचे खोल के बंद कर दे तो मैं हसद करूं, मैं जलूं, हालांकि मैं करता कुछ नहीं, हालांकि मैं मेरे अंदर कड़वी जड़ हसद, मैं जलने वाला हूं। मुझे खुदा कभी बरकत नहीं देगा, बल्कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं ये चर्च छोड़ दूंगा और मुझे खुदा हटा लेगा। बल्कि उनको बरकत देता है जो आगे बढ़ते जाते, जो आगे बढ़ते जाते हैं। मैं चाहता हूँ बाजी बीना भी है, ये भी इस खिदमत में आए, ये भी इनके साथ खिदमत करे।